सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ਅਸੀਂ अपना अज जो रेशो स्टार्ट की थी ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ 1230 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1230 ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4, 10, 16 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਰਿਮਾइंडर शैल भी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਡ 'ਚ 3:4:5, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3:4:5 ਬਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ 3:4:5 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ B ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਉਰੇ 3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂ, ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਐਕਸ 3x 4x 5x। ਇਹ ਏ ਦੀ ਆ, ਆ ਬੀ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 1230 ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਚੀ ਆ ਉਹਨੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ 1230 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ 3x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, 3x ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਰ 3x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 3x ਪਲੱਸ 4 ਪਲੱਸ 4x ਪਲੱਸ 10 ਪਲੱਸ 5x ਪਲੱਸ 5x ਪਲੱਸ 16 ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1230। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਹੁਣ 3x 4x ਤੇ 5x ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 5 4 9 10 12 12x ਆ ਗਿਆ, ओके। 10 और 16 और 4 कितना हो गया, 30। अगर 1230 मेरे को आ पे है, अगर 1230 में 3 माइनस करा था मेरे को कितना आ गया, 1200। अगर मेरे को 1200 आ गया तो x बराबर मेरे को कितना आ गया, 100। तो x बराबर कितना आ गया, 100। तो मैनू कितना पूछा, मैनू पूछा B का शेयर कितना सीगा, कितना सी को शेयर B को, ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ B ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਬੜਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 100 ਨੂੰ 4 x ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ 400 ਹੋ ਗਿਆ, 410 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 410। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤभी ਮੇਰੀ ਆਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਫਾਸਟ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 10 ਕਿੰਨਾ ਕੁ 26 4 30, ਇਸ 3 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਚ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਾਂ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਤਾਂ 30 ਜਾਂ 30 ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 1200, ਮੇਰਾ 1200 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ 5 4 9 10 12 12 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਗਰ 1200 ਆ, 100 ਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਗਰ 100 ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 400 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ 400 ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਅਰ, ਅਗਰ 20 ਦਾ 400 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਥੋੜਾ ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਵਾਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 410 ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੈਲੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ 골ਡ ਕੋਇਨ ਸੀਗੇ,
ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੇਆ, ਵਿਜੇ ਐਂਡ ਰੋਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ 30, ਰੋਹਨ ਨੇ 16 ਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਗੋਲਡ ਕੁਆਇਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਜੇ ਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਇਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿਜੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਿਸ 30, 30, 60, 7, 76, 76 ਹੋ ਗਏ। 76 ਕੁਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 3600 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਊਂਗੇ, 3 2 5 6, ਜਾਂ 6 ਚਿਕਮ 36, ਤਾਂ ਆ 600। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 600 ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਪਰ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਦੂਣੀ 12, 1200 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 1200 ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਡਡ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੌਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ 30 ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ 30 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 1230। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ 1 ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਲੋ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ, ਆ 30 ਉਹਨੇ ਵੇਚੇ, 30 ਉਹਨੇ ਵੇਚੇ ਤੋਂ 30 ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ 30 ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 3x ਹੋ ਗਿਆ, 3x ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ 16 ਕੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ 16 ਕੁਆਇਨ ਹੋ ਤਾਂ 3676 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 30 ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਹੋ ਗਿਆ, 16 ਹੋਗਾ 76, उधर होगा 3600। अगर इधर 3600 है, अगर इधर 3600 है तो इधर x 2x 3x, तो कितना को 6x, तो x बराबर कितना आ गया 600। अगर x इज इक्वल टू 600 आ गया, मेरे को 600 आ गया, तो b को कितना शेयर है, उन्हें पूछा विजय को, विजय का सेंटर वाला फिर एंड 6 दूनी 12, 12 तो 30, तो 1230 आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, पलक obtained 36 ਮਾਰਕਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਰੋਜ਼ੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਤੇ 9। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਜਰਾ, 5 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਆ ਇਹੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਆ ਇਹ 36 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਯੈਸ। ਅਗਰ 36 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 ਚੌਕੇ 36। ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਅਗਰ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮਾਰਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। 5 4 14, 14 ਗੁਣਾ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, मतलब अपना 9 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, बोलो 126 थोड़ा आंसर आ गया। क्लियर। सो ऐदा ਹੁਣ ਇਹ ट्रेडिशनल तरीका किदा होगा, जो ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करना चाहते उन्होंने वास्ते किमें करूँगे वो क्वेश्चन। ਹੁਣ 36 आ गया तो पलक ऑब्टेन 36 मोर दैन रोजी। पलक ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ 36। अगर 36 ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਿਆ ਆ ਗਿਆ। 5 4 9 अगर है ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਤੇ ਉਰੇ ਅਗਰ 9x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, 9x ਮਾਈਨਸ 5x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਗਰ 36 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਰੇ 4x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। अगर 4x बराबर 36 है, अगर 4x बराबर 36 है तो और कट्टो और हो गया 4 9 36, तो एक x बराबर 9 आ गया। अगर x बराबर 9 आ गया तो मैंने पूछे देखो x बराबर हुण भी तो 9 आया, साडा भी 9 आया सी, उरे 4 आया, साडा भी 4 आया सी। तरीका अलग अलग जिवें मर्जी फॉलो करो, वो तुहाडी पर डिपेंड आ। हुण 4 9 आ गया, हुण मैनूं पता कि इहनूं जोड़ दो, 9 5 14 हुंदा, 14 9 जोड़े 526 आंसर आ गया। क्योंकि मैंने सम ऑफ देयर मार्क्स पूछा ना, तो मैंने जोड़ के सिर्फ इहदे नाल मल्टीप्लाई करता, इन्हें मल्टीप्लाई करता। समझ आ गया। अगे चलते हैं। देखो देखो प्राइस ऑफ स्कूटर जो टैलीविजन की रेशो है नहीं दी हुई है, 5 रेशो 3 दी हुई, 3 दी हुई। देखो भाई जिन्होंने नहीं समझ आ रहा प्लीज़ मेरे परसेंटेज तो चैप्टर्स देखो, थानू सब कुछ समझ आना शुरू हो जाना। ठीक है। पर स्कूटर्स का 5 रेशो दिता, 3 दिता। मैंने स्कूटर की कॉस्ट दी भी 18,000 रुपया, जो कि ज़्यादा है टैलीविजन नालों। हुण मैं जो तरीका सिखाया उस तरीके ना करो। किन्नी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जी 2 ज़्यादा कि यही 18,000 के बराबर नहीं हैगी, हाँ यही तो 18,000 के बराबर है। अगर ये 18,000 के बराबर तो एक ये तो ये भी मैं लिखा ना पेपर जो मैं लिख रहा 9,000, दिमाग सारा कुछ दिमाग च करा, पैन भी चलाने लोड़ नहीं पैंदी। मैं दे क्वेश्चनों के क्वेश्चन कर दो वजे में हैगा। टैलीविजन का प्राइस पूछा, टैलीविजन की रेशो कितनी 3 है,
तो 3 ਨੂੰ गुणा करो 9 ਤੇ 27 ਤੇ 27000 आंसर आ गया। क्लियर। ट्रेडिशनल तरीका सब ਨੂੰ पता है किमें करना है। ट्रेडिशनल तरीका सेम वही टैलीविजन की ज़्यादा स्कूटर की ज़्यादा स्कूटर माइनस टैलीविजन इज इक्वल टू 18000 18000 उसकी ज़्यादा है। हूँ 5 दे 3 गए 2 उरे 5x लिखूंगे 2x लिखूंगे तो उरे बचना मेरे को 3x लिखूंगे 2x बचा। अगर 2x बराबर है 18000 है तो x बराबर है कितना आ गया 900। अगर एक x बराबर है मेरे को 900 आ गया तो मैंने पूछा है टैलीविजन 3x मनना है तो 9 ਤੇ 27000 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट सैलरी ऑफ ABC इज रेशो है ना C की मंथली सैलरी 500 ज़्यादा है A नालों तो B की एनुअल सैलरी कितनी होगी। कल ध्यान रखना उरे इन्होंने एनुअल लिख के बंदे नूं फसाया है। ध्यान रखना है उरे मंथली की दिती भी आ देखो उरे एनुअल सैलरी दिती भी C दी आह उरे लिखा मंथली। बच के रहना इस चीज़ तो कृपा करके। अगर मंथली सैलरी 500 ज़्यादा ए नालों तो मैं तुहानूं कहूँगा C माइनस A इज इक्वल्स टू 500। नहीं तो बट अपने ना तरीका बनाइए अपने ना तरीका बना देखो C की सैलरी A नालों ज़्यादा A की हैगी है 2 C की हैगी 4। अगर 4 तो 2 माइनस करिए तो कितना बचा 2 ये मतलब 2 ज़्यादा। क्या यही 2 500 के बराबर नहीं है। नहीं ये 2 500 के बराबर नहीं है क्योंकि उरे मंथली सैलरी 500 आ ना कि ईयरली दी। रेशो मेरे को साल दी गिवन आ लेकिन मंथली ये लगते छोटे क्वेश्चन ने। जिन्ना छोटा क्वेश्चन होंगे ना उन्ना ही ट्रिक ना फसाया जाता। बच्चे इसी गलती करके एक 2 नंबर ना रह जाते हैं। कृपा करके गलती नहीं करनी इदा की। सो मंथली सैलरी 500 आ तो 12 ना गुणा कर दो क्योंकि साल की कढ़ लो है ना तो 12 5 60 तो 6000 जी आ वो साल की है। हूँ 2 के बराबर हो गया। अगर एक बराबर है 3000 थोड़ा अगर एक बराबर है 3000 की थोड़ी सैलरी आ गई हुई है तो मैंने पूछा B की एनुअल सैलरी कि हूँ एनुअल की रेशो निकल गई ना। सो B की एनुअल रेशो कि 3 3 9 तो कि आंसर आ गया 9000। कि आंसर आ गया 9000। सो डेफिनेटली मेरे को 9000 आंसर आ गया। 9000 रुपये है नहीं इस करके नन ऑफ दीज आंसर होगा। हाँ जी किसी ने कोई डाउट हो तो मैंने पूछ सकता है। ठीक है जिसे ने कोई भी डाउट होया तो मैनू वो पूछ सकता। क्लियर। नेक्स्ट एवरेज एज आह जिथे वर्ड एवरेज आ गया थोड़े कान खड़े होने चाहिए। दसदा मैं क्यों। एवरेज एज ऑफ परसन एंड सन परसन ते सन दा एवरेज दसो छोटी क्लास एवरेज किदा कढ़ते होंगे सी भी जिन्ना चीज़ा ना सम उन्ना ही डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 10 चीज़ों ना सम जोड़ 10 चीज़ों ने जोड़ता सी तो 10 ना डिवाइड करता सी उसका एवरेज निकलता सी। जे इत्थे 2 बंदे ने तो डिवाइडेड बाय 2 करूँगा ना आह बस इहदा ध्यान रखना। चलो एवरेज लिखता थोड़े कान खड़े होने चाहिए। उरे 30 आ गया हूँ मतलब आप कह सकते हैं बई परसन प्लस सन की जो एज आ वो 60 हो गई है ना 60 हो गई। रेशो ऑफ दर एज 4 1 दी हुई है। अगर 4 1 तो जोड़ना है 4 1 प्लस 5 हो गया 12 5 60 हो गया मतलब एक बराबर है अगर 12 हो गया। हूँ ये अगर 12 कितों आया मैंने जोड़िया 5 बराबर 60 रख के 12 ने काटता शॉर्टकट्स किए है। हूँ मैंने एज ऑफ सन पूछी है कि सन की रेशो 1 नहीं हैगी तो अगर 12 है तो सन की एज भी तो 12 ही होंगी ना क्योंकि यार 1 ना 12 गुणा करूँगे जो 1 ना देखो 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 अगर 1 नूं 12 ना गुणा करोगे तो साडा उन्ना दा उन्ना ही आऊगा। समझ गए। तो नेक्स्ट देखो 16वां क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखो जरा कृपा करके बी अलर्ट। सो देखो पूरे की है सर्टन टास्क आर डन बाय दिस इज डी परफॉर्म 28 टास्क इन ए डे। क्या डी की रेशो 7 हैगी है। अगर डी की रेशो दी हुई है तो डी का काम भी दिता वा 28 तो मैं इस 28 नूं ना गुणा कर सकता हाँ तो 7 चौक 28। अगर 1 बराबर है 4 आ ਇਹਦਾ मतलब मेरे को ये निकल गया बई ABCD ने किन्ना किन्ना काम कर रहा। हूँ A ने किया 4 हूँ मैंने पूछा कि जो A एंड C इकट्ठे देखो उन्हें हूँ ना ऐ नहीं करना बई 12 ते 36 बात उन्होंने बाद जोड़ दे फिर नहीं सीधा डायरैक्ट करे करो यार। 3 दिन का पूछा 3 दिन असीं बाद च गुणा कर लाँगे पहला 1 दिन का कढ़ लिया जाए। रेशो हमेशा 1 दिन की चीज़ कढ़दी एक गल दिमाग में फिट रखनी है। कभी भी रेशो कढ़ी जाती तो सिर्फ 1 दिन दे चीज़ जी 1 दिन के चीज़ होई होंगी कोई भी हो भावें किसी ने बेचिया कुछ लिता भावें कुछ काम करे भावें कुछ भी करे
वो एक दिन वास्ते आंदा हमेशा। तो तुसीं याद रखो ए सी ने जो वर्क टुगैदर किया किन्ना, हुण ए सी किन्ना, ए हैगा मेरा 3 और सी किन्ना 5, तो 5 3 8, तो गुणा 8 जो मैं करूँगा तो मेरे को 32 मेरा काम आ गया। 32 जो मेरा काम आ एक दिन का आ, लेकिन मैंने पूछा कि ना 3 दिन का, तो 3 नाल गुणा करूँगा तो कितना आ जाऊँगा, कितना आ जाऊँगा 96, तो मेरा 96 आंसर हो गया। क्लीयर हो गया? कोई डाउट तो मैंने पूछ सकते हैं, ध्यान नाल देखोगे थोड़ा आपे समझ आ जाना। कृपा करके ध्यान ना करो, जो कोई समझ नहीं आया दोबारा मैंने पूछ लो, तो एक दोबारा तुम दस देना मैं, ताकि तुम समझ आ जाए। 7 बराबर है अगर मैं 28 है, ये थोड़ा पता लग क्यों रखा मैं बराबर, हाँ रख लिया क्योंकि मैं थोड़ा मेरे को परसेंटेज पढ़ी थोड़ा पता लग गया होना। 1 बराबर है अगर 4 आ चुके सब का कड्डो, तो मैं इदा करें ना, देखो अगर मैं सब का अलग अलग कढ़दा तो यदा कितना आ गया, ए का कितना आ गया 4 तीए, एक मिनट 4 तीए 12, 40 12, तो मैंने सी का पूछा एक है ना, तो 4 5 20 तो 20, अगर मैंने बी का पूछा तो बी का भी कढ़ लेना था। उन्हें जोड़ो 32 है, देखो फिर भी तो 32 आया ना, जिधर मर्जी तुर पो यार। हूँ 3 दिन का पूछा, 3 ना गुणा कर दो तो कितना आ गया 96। क्लीयर? डन डन। टू फ्रेंड्स वर्क इन सेम कंपनी, ਉਹਦਾ रेशियो ऑफ एन 4:3 ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा बोलिया द फस्ट फ्रेंड गॉट प्रमोटेड 1 ईयर, तो सैलरी बढ़ गई। पहले फ्रेंड की सैलरी बढ़ी है जो वो किन्नी बढ़ी, जो दूजे फ्रेंड की 1/6 आ। हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो, उरे 1/6 करना बहुत डिफिकल्ट होना तुहानूं पेपर च। मैं तुहानूं हमेशा गल कही है, अगर रेशियो तुहानूं ऐ होवे कि तुहानूं डिवाइड करना डिफिकल्ट लग रहा है, तुसीं क्या करो यार, रेशियो थोड़ी बड़ी कर लो। मैं हुंदा मैं इदां करना सी, मैं 400 कर लिया, एक नूं 300 कर लिया, फिर क्या हो गया, जिन्ना उधर मल्टीप्लाई उन्ना उधर मल्टीप्लाई। मैथ का फॉर रूल होंदा ना, देखो मैं अपनी फैसिलिटी वास्ते मैं मल्टीप्लाई कर सकदा। मैं भावें इनू 1200 बना आंदा, तो मैनूं इधर भी जिधर मैं 3 नाल गुणा करदा तो इधर भी 3 नाल गुणा करना पैना सी, बस ठीक है। हुण जिहड़ी इहदी सैलरी वधी, इस बंदे की सैलरी वधी आ, वो 1/6 ऑफ इहदी है। हुण इहदी 1/6 कितनी है 50, ये 50 जोड़ दो, ये 50 जोड़ूँ तो कितना आ गया 450। ये 450, ये 300 ही रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा बधी दूजे की। तो मैंने पूछा उन्होंने रेशो कितनी करंट सैलरी थी, तो रेशो पूछी है, रेशो कट लो, ये कट्टिया और आ गया 5 6 30, 5 9 45, आ 3 3 9 आ गया, आ 3 दूनी 6 आ गया, तो कितना आ गया 3/2। तो 3/2 के ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीज का आंसर है। तो कितना आंसर है नन ऑफ दीज। क्लियर? एनी डाउट? नैक्सट चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच इज़ कंपोज्ड बाय रॉ मटीरियल दिस। तो मैंने ना कॉस्ट दी भी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दिता वा जो 3 गुणा ऑफ रॉ मटीरियल के बराबर है। देखो असी अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ीए बीच असी पढ़ीए तो एंड च लिखा हुआ इफ द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 36, तो मैंने 36 दी ओरिजिनल कॉस्ट मेरी 36 है, तो मेरा रॉ मटीरियल किन्ने का होया दसो मैनू, रॉ मटीरियल मेरा 12 रुपये का होया है ना। अगर रॉ मटीरियल 12 आंदा तो उन्हें लिखा हुआ आर्टिकल जोड़ा है वो रॉ मटीरियल और वेजिज का बनया वा। तुम मैंने खुद दसो अगर 36 रुपये कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है तो 12 रुपये का रॉ मटीरियल निकल गया बिचों, तो वेजिज किन्ने दे होए, वेजिज होए 24 रुपये के, है ना, वेजिज 24 दे होए। देखो करके, क्योंकि उन्हें कहा ना भी जिस रॉ मटीरियल प्लस वेजिज है। हुण ਜਿਹੜੇ रॉ मटीरियल आ वध गया 3 तो 8, 3/8 ਵਧਿਆ रॉ मटीरियल मेरा 12 है। अगर 12 में रॉ मटीरियल मेरा बढ़िया तो 8/3 हो गया, 3 चौके 12, तो कितना आ गया 24 आ गया। देखो बदलने वाली चीज़ ऊपर रखनी है, बदलने वाली चीज़ ऊपर रखनी, गल याद रखनी 8/3, 3/8 ना करो गलती ना कोई भी। वेजिज कितना बढ़िया 11/4, तो 11/4 बढ़िया 11/4 लिख दो, तो 4 6 24 हो गया 66, तो 66 + 24 कितना होया, ओके मैं 3 जगह 4 32 उरे 32 आएगा, सॉरी उरे 32 आएगा, 32 + 6 कितना आया 80 अपना 98 ऑप्शन है, नहीं तो नन ऑफ दीज आंसर। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो मैंने पूछ लेना, करके देखियो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं हैगी। आ देखो सिक्के वाला क्वेश्चन बहुत सारे पेपर च करते हैं, सिक्के वाला क्वेश्चन चंगी तरह अगे कराऊंगा भी, एक अलग टाइप में बनाई हुई है अगे जाके, पर एक थोड़ा जहा डैमो तुम देना चाहता, इस करके मैं पा दिता गया। मनी जी डिवाइडेड की गई ABC 1 रुपया। देखो गल याद रखनी, रेशो च हमेशा चीज़ां सेम होंदियां,
ए नू अगर 1 रुपया मिलया तो बी नू कितना मिले 65 पैसे है ना, 65 पैसे, लेकिन 65 पैसे है, पिछले याद रखना पैसे। एंड सी नू कितना मिले 35 पैसे, इन्हें भी पैसे मिले, लेकिन मैंने पैसे जो कढ़ना है तो इनू मैं कह सकता 1 रुपये 100 पैसे होंगे, मैं सबको 100 कर लिया, इन्हें कट्टे चला रेशो कट्टे जरा कितनी आ गई 1। देखो जी आ पैसे चा तो ये भी पैसे च ही होना चाहिए, आएगा समझ? यस, इस करके करा मैं, इनू कट दो, जो कट्टूंगे तो इनू कि आ गया देखो। हाँ पहला उसी 20 पाने टेबल से कट लो ना, इनू 20 पाने 100, 13 पाने 65, 5 7 35 है ना, आ गया। आ कट्टिया था अभी रेशो आ गई। रेशो देखो उदो चीज़, रेशो उदो आदि होंगी जदों यही जी पोजीशन से चीज़ आ जाए जिथे आपस बाद कट्टे ही ना, हुणे कट्टन जोगे नहीं रहे तो मतलब मेरी सही रेशो निकली है, ठीक है। वो भी 1 दिन की है ना, जिवें तुहानूं दस्सिया मैं। तो पूछे सी का शेयर 56 रुपये है, अगर 56 रुपये तो मेरे को 7 है, 7 हो गए, 1 मिनट रुको, अगर मेरे को सी 7 आ, 7 मेरे को पैसे है तो मेरा शेयर कितना 56 रुपये है, ये रुपीज़। हुण एक बराबर हो सकते आपस नहीं हो सकते, जिवें तुहानूं मैं दस्सिया सीगा, जे चीज़ हमेशा बराबर वो होनी जी इक्को जी होगी, तो मैं इस पैसे नूं क्या 100 गुणा करदा, पैसे निकल जाने हैं। तो 7 8 56, अगर 1 बराबर मेरे को 800 आया, अगर 1 बराबर मेरे को 800 आया तो मैंने पूछा कि सम ऑफ ऑल कितना, तेन जोड़ दो 20 और 13 और 7, 7 3 10 20 40, 40 आ गया, 40 गुणा 800 किया तो आ गया 32,000। अगर 32,000 मेरा आ गया, मैनू ना पैसे रुपये में पूछे गए क्योंकि देख के ऑप्शन में पता लगता, तो डिवाइडेड बाय 100 मार दो, कोई चक्कर नहीं। आ कट्टा मेरा कितना आ गया 320 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सीट्स ऑफ मैथ एंड इंग्लिश जनरल नॉलेज एनी नहीं दी हुई है। देखो उरे 40 50 75 ਵਧਾਈਆਂ गई सीटां, तो पूछा ਵੱਧਦੀ सीटां की रेशो क्या है, तो देखो 40 50 75 ਵਧਣਾ बहुत औखा हो जाऊगा अगर मैं इस रेशो को लेके ही चलूँगा। तो मैं क्या कर सब नूं 10 ਨਾਲ गुणा कर लिया, 50 70 80, हुण कड्डो 40% ਵਧਿਆ। मैं दसो मैं 40% लिखा, तुहानूं 40% लिखना क्या सिखाया सीगा, 20 दूना 40 20 15 100। जिन्हें परसेंटेज चैप्टर नहीं देखा है वो जरूर मेरा देखो जाके, उत्ते सब कुछ सिखाया होया। उरे ਵਧਿਆ लिखिया तो उरे 5 2 7 7/5 हो गया। अगर 7/5 है तो ये 50 है, जो इनू कट्टो जरा देना 5 10 50, तो 10 7 70 70 हो गया। उरे आ गया 50% ਵਧਿਆ, 50% क्या होंगे 1/2, इहदा मतलब 3/2 ਵਧਿਆ, क्योंकि ਵਧਿਆ 1 बढ़ गया ना 3/2। अगर 25 भैया 75 तो कितना हो गया, ओके। सो 35 दी है 3/2 पे 70 ना गुणा करो, 2 ना कट्टिया इनू 35 के बराबर। अगर ये 35 के बराबर कट गया तो मेरे को कितना आ गया 30 के बराबर, 35 गुणा 3 करूँगे तो 3 5 15 105, ओके। तो उस 75% बचे, 75% क्या होंगे 25 दी 75, 25 चौका 100, कितना बढ़े 7/4, 7/4 बढ़ गया। अगर 7/4 बढ़ गया तो 4 ने डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 1 बराबर 20 आ गया, जिसका मतलब आ 140। क्लियर? हम कट दो कितना कितना कट्टो इन चंगी तरह। तो अगर असं कट्टूंगे तो 7 टेबल जाना 7 10 70, 7 1 7 तो 7 5 35, 7 दूनी 40 20 आ गया। जिन्हें कट्टूंगे अगर 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, क्या अगे कट सकते नहीं, तो ये मेरी रेशो आ गई 2 3 4। क्या 2 3 4 ऑप्शन हैगा तो आंसर नंबर सी का करेक्ट आंसर। क्लियर? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, ओके। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे आ, ये रेलवे के सेंटर के जिन्हें एग्जाम देने उत्थे बहुत बार पेपर च पूछे जाते हैं। इतने तक ऑलरेडी पंजाब भी हूँ ASP का एग्जाम होया सी पिछे, वो भी पूछा गया था क्वेश्चन यह जा। देखो उन्हें बोलिया कि 3 डजन मिरर जोड़े गिर के टुट गए, तो दसो कहते रेशो केड़ी रेशो थले वाली नहीं हो सकती टुटे हुए की। मनु इन्नी गल जवाब दो, रेशो का मतलब क्या आता जोड़ के ये बराबर होना चाहिए, यही होंगे। 3 डजन लिखा, 1 डजन च 12 चीज़ा होंदियां, तब 3 डजन मतलब 12 ते 36, टोटल 36 चीज़ा हो गई। तो इन्हें च देखो कि जेड़े देखो जेड़े इन्ह रेशो नू प्लस करके जो इनू कटदा होगा वो रेशो होंगी, बाकी नहीं होंगी।
ਹੁਣ ਉਰੇ 11 + 7 ਜਦੋਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 18 ਬਣਦਾ ਕਿ 18 ਦੇ ਟੇਬਲ 36 ਕੱਟਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ 3 1 4 ਤਾਂ ਇਹ 4 ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਟੇਬਲ 36 ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ 14 3 17 ਕਿ 17 ਟੇਬਲ 36 ਜਾਂਦਾ नहीं आ रहा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ क्या सी है। ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 7 + 12 ਕਿ ਕੱਟਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ सी मेरा करेक्ट है। समझ आ गया? किसी ने कोई डाउट हो पूछ लो, सौखा ही है। देखो आप फिर एक नंबर आ गया, फिर सेम क्वेश्चन में पाया इतने देखो तुहानू समझाने वास्ते होल नंबर कोई भी 2 होल नंबर जो सम इन्ना कैन नॉट बी इन द रेशो, थल्ले वाली रेशो नहीं हो सकती। सम के है तो जोड़ के देख लो 17 + 4 कितना होंदा 21 कि 21 के टेबल 84 जाता है। 11 + 3 14 का 4 टेबल 84 जाता है। 5 3 8 के जाता नहीं तो आ गया आंसर नंबर सी। अगला भी चेक कर लो और 4 टेबल जाता है सो आंसर नंबर मेरा सी हो गया। ठीक है, इधर क्वेश्चन नजर टैकल करना। ठीक है, सेंटर से बहुत क्वेश्चन आते इदा के। ठीक है, उस सेंटर का कोई भी हूँ आर्मी उर्मी तुम एनडी उंडी कुछ भी दोगे उस क्वेश्चन रेशो से ही पूछ लिया जाता कई बार, एक बार नहीं कई बार 1000 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम से बच्चों को यही नहीं आता होंगे। देखो आ दिता हुआ कहना ये कि थले करैक्ट होऊगा, ये पूछा हूँ पूछा कि करैक्ट होऊगा दसो आ एक्स वाई 36 किमें बनया होऊगा कि रेशो ना बनया होऊगा। देखो अगर आ लिखोगे आप एक्स रेशो मतलब डिवाइड होंगे 9 4 वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा आ जाऊँगा एक्स वाई को 36। लो ये ऑप्शन नंबर ए नाले आंसर आ गया। तो आंसर केड़ा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ऐदा खोल के देखना सी। ठीक है, चीज़ समझ आ गया डन। बाकी आऊँगा नहीं। देखो 17 7 का कितने मेल आ। ठीक है, सो आ जाना। देखो 2 मैन जोड़े आ सिटिंग डाइनिंग टेबल से बैठे आ, 12 एग जोड़े आ उन्होंने शेयर किए, 12 एग शेयर करे। थर्ड मैन आ गया वो कहना बई मैनू भी बई रोटी खिलाओ है ना, पैसे तुहानू दूंगा कहना वो मैं। तीजा मैन आ गया उन्हें ना एग्स इक्वली शेयर किए आ। ठीक है, तीजे मैन ने 24 रुपये देते दोनों को। तो दसो दोनों जो पैसे मिले उन्हें डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन यही है तुहाडा। तो मेरी गल ध्यान नाल सुनो। देखो हम 12 एग दिते आ, पहला इनकी रेशो कढ़ लो। इनकी रेशो दी भी है अगर 7:5 मेरे को हैगा, अगर मेरे को 12 के बराबर है ना, तो मैं कह सकता 1 नूं 7 1 नूं 12 मिले, क्योंकि 7 5 12 जो मैं रखूँगा तो 12 बराबर 12 आ गया। अगर 12 बराबर है 12 आ गया तो ये मतलब 1 बराबर 1 आ गया। जिवें तुहानूं दस्सिया मैं रेशो निकल जाती तो जिहदी मैं चीज़ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आ जाता। तो 7 और 5 मिले भी मिले। ठीक है, हुण रिक्वेस्ट करन नाल ना उन्होंने तो इक्वली शेयर करते। तो इक्वली मतलब अगर 12 अंडे में बराबर देखो एग्स इक्वली शेयर करने हैं, 3 बंद मैं शेयर करने हूँ, मैं किदा करूँगा 4 4 4 क्लियर 4 4 के रूप से करूँगा। तो मैंने पूछा बई उन्हें 24 रुपये देते दोनों 24 रुपये मतलब 4 अंडे एक तीजे। देखो तीजे बंदे ने ना तीजे बंदे मतलब 12 अंडे सी, पहले बंदे भी 4 खाने मिले, दूजे भी खाण च मिले, तीजे भी खाण 4 च मिले। इहदा जो पर उन्हें 24 रुपये दिते। देखो जिन्ने खाधे ने उन्ने दे ही पैसे देने हैं ना। तो अगर 4 अंडे खाधे आ तो मैनू दसो 1 अंडे के पैसे किन्ने होए। 1 अंडे का होया 6 रुपये है ना, 1 अंडे के 6 रुपये होया, 1 अंडे 6 रुपये होए। मैनू पूछा डिफरेंस बिटवीन देयर अमाउंट रिसीव्ड बाय 2, डिफरेंस कितना। तो इन्हां चों घटा लो इनू 7 5 के 2 तो 2 6 12 तो कितना आंसर आ गया 12 रुपये। क्लियर, तो मेरा 12 रुपये मेरा आंसर आ गया। क्लियर, तो नेक्स्ट देखो इन हाउस देयर आर डॉग कैट एंड पैरट। पैरट ते रेशो दी भी 375 दे। उपरला क्वेश्चन अगर नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स दसो, मैं अगली बार जब अगली वीडियो पाऊंगा उसमें मैं डेफिनेटली ऐड ऑन करूँगा उन क्वेश्चन। अगर तुम नहीं समझ आया एक बार रिपीट करके देखो, थोड़ा समझ आ जाना ऑटोमेटिक। अपने हैंड ना बाय हैंड करके देखो, बैक ही नहीं देखनी वीडियो, अपनी कॉपी पेन चक के रखा करो ना। ठीक है, हाउसेज ये डॉग कैट एंड पैरट 3 7 5 ये डॉग आ कैट आ मेरी पैरट। इफ द नंबर ऑफ कैट एंड डॉग टुगेदर वाज मोर देन द नंबर ऑफ पैरट, उन्हें बोलिया कैट एंड डॉग ज़्यादा, तो कैट एंड डॉग टुगेदर क्या है ज़्यादा है ये 50 नालों पैरट नालों इक्वल टू। क्या तुम हुण इदा करके आऊँगा पेपर 'च क्वेश्चन है
मूर्खता वाला काम करूँगा तो इदा करके आऊँगे हूँ। देखो हो तो जाना क्वेश्चन में थोड़ा रोकदा नहीं है, इदा होना नहीं क्वेश्चन, लेकिन फसन दे वही काम है कि तुम फिर वही काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगे, बट टाइम कंज्यूम नहीं ना ज़्यादा करूँ देना। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 50 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪੇਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਈ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲਸ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚਿਕਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ, ਹੇਕੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਟ ਐਂਡ ਡੌਗ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਬਦਲਣਾ, कैट एंड डॉग टुगैदर मोर दैन द नंबर ऑफ पैरट। देखो वो दसो कैट एंड डॉग, एक मिनट, आ कैट आ डॉग आ, ठीक है, कैट एंड डॉग आ, कैट दी रेशो, एक मिनट यार कितने गए, हाँ कैट एंड डॉग दी रेशो 7 3 3 3 आ 10 हो गया। अगर टुगैदर 10 आ तो एक ज़्यादा है पैरट नालों, पैरट दी 5, अगर 10 इन्हों की तो 5, 10 चो 5 गए 5, तो कितनी ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। कि यही 5 50 के बराबर नहीं है, हाँ यही तो बंदा बराबर है, तो 5 एकम 5 5 10 50। अगर एक बराबर है 10 मेरा मेरे आ चुके हैं जो मैं चाहिए होंगे, हर बार मेरा यही टारगेट होंगे मैं एक दी रेशो कट ला। तो मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ पैट्स किन्ने हाउस के विच, टोटल नंबर पूछा, तो मैं हूँ ये नहीं करूँगा पहले इनू 10 ना गुणा करूँगा, इनू 10 ना गुणा करूँ, इनू 10 ना गुणा, नहीं मैंने प्लस किया 7 3 10, 10 के बाद 15, तो 15 10 150, तो मेरा आंसर कितना आ गया 150। क्लीयर क्लीयर, गुड गुड बच्चे, चलो ਹੁਣ देखो नैक्सट देखो कहते जिंक एंड कॉपर की रेशो ना दी हुई है जो कि 400 ml है। अगर मेरे को जिंक आ, अगर मेरे को कॉपर आ, तो जिंक दी हुई है 5, ये दी हुई है 3, ये कि बराबर आ गया मेरा 400 दे, कि बराबर आ गया मेरे कि बराबर आ गया मेरा 400 दे, कि आ गया 400 दे, ये तो 5 रेशो 3 दी हुई है, ठीक है, आ गया समझ। हूँ हाउ मच कॉपर शुड बी एडड टू मेक द रेशो 5 आ। देखो मेरी गल ध्यान सुनो, हूँ 5 और 4 रेशो बन चुकी जो कि लिखा होया, देखो बन गई ना, लेकिन ऐड क्या किया गया, ये ऐड किया गया कॉपर, क्या ऐड किया गया, कॉपर, सिर्फ कॉपर ऐड किया गया, क्या जिंक नू ऐड किया गया नहीं। इसका मतलब जो जिंक की पहला रेशो सी वो हुण भी उही होगी जो कि दिती हुई है एग्जैक्टली। देखो अगर थानू उरे बराबर ना होंदी रेशो जिंक की, मैं इदा क्यों कह रहा क्योंकि इत्थे सिर्फ कॉपर ऐड ऑन होया, इस करके अगर बराबर ना होंदी तुसीं इन्हां नूं बराबर करदे। ऐदां दे क्वेश्चन मैं अगे थानू लेके आऊँगा, तुसीं इन्नी गल दा कंसैप्ट सीखना है कि देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ, पेपर से देखने नूं मिलने ही मिलने आ। क्या क्या कॉपर मैं ऐड किया, लेकिन मैं इनू थोड़ा ऐड किया, तो मेरा 5 का 5 आ गया। किन उन्हें पूछा कि हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड, दसो उरे कितना ऐड किया, 3 तो 4 हो गया, क्या मैं उरे 1 नहीं ऐड किया, सिर्फ 1 ऐड किया बस। हुण तुहाडा काम क्या है, तुसी कोई भी रेशो इन्हां दी, हुण देखो इहदी रेशो दित्ती भी आ है ना, 1 की रेशो कढ़ लो, उन्हें 1 नाल गुणा कर, थोड़ा आंसर आ जाना। हूँ 5 3 8, 8 में जो मैं इन 400 ना गुणा करूँगा तो कितना आ गया 50। अगर 1 बराबर है 50 है तो मैं कितना ऐड किया, 1 तो ऐड किया, 1 नूं 50 ना गुणा करूँगा, मेरा 50 आ जाना। जो 2 ऐड होंगे तो 50 दूना 100 हो जाना, 3 ऐड होंगे तो थोड़ा पता ही है 150 हो जाना। ठीक है, क्लीयर हो गया, सौखा सी ना क्वेश्चन, बस तुसीं इदा क्वेश्चन करना टैकल, एवें ही करना। ठीक है, अगे जाके मैं क्वेश्चन है टाइप्स लेके आऊँगा, तो मिक्सिंग चल रही। ठीक है, कंपनी रिक्वायर एनी स्ट्रेंथ, प्रेजेंट इंप्लॉय ना, प्रेजेंट देखो प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट इंप्लॉयज़ जोड़े है 2400 लेडी 400 जेंट्स आ, उन्होंने टारगेट नूं मेनटेन करने लई कितनी रेशो टू रीच द टारगेट, हाउ मच लेडीज़ आर रिक्वायर्ड, लेडीज़ पूछा कितनी लेडीज़, टारगेट कितनी लेडीज़ है, कंपनी नूं एनी एनी लोड़। हुण मैनूं दसो जरा, अगर मेरे को उरे जेंट्स ने, उरे मेरे को लेडीज़ आ गई हैं, मेरे को जेंट्स किन्ने ने 6400, मेरे को 6400 किन्ने हैं जेंट्स ने, लेडीज़ मेरे को 2400।
2400 मेरे कितनी है लेडीज़। मैनू एक गल जवाब दो जो इस दे विच स्ट्रैंथ पुछी गई हुई है, मतलब लेडीज़ नू कितनी स्ट्रैंथ की लोड़ आ ना, कितना उच की है उन्होंने टारगेट लेडी कितना कौन किनू जोड़ना, लेडीज़ जुड़ रही हैं, सिर्फ लेडीज़ जुड़ रही हैं। जेंट्स तो सेम रहने हैं, जेंट्स तो सेम रहने हैं। कंपनी की स्ट्रैंथ जी है वो इन्नी है। तुसीं गल समझ रहे, तुसीं गल समझ रहे हैं ना, कंपनी की जी स्ट्रैंथ आ वो इन्नी है। जे मैं इस कंपनी दे विचों इस 6400 नूं जिहड़ा 6400 आ, अगर मैं इनू माइनस करदा इं फिर दसो जरा मैनू, अगर मैं आ 6400 जेंट्स, देखो मेरी गल ध्यान रखो, जेंट्स तो सेम रहे, जेंट्स तो नहीं बधे हैगे, एनी स्ट्रैंथ रिक्वायर है, तो मैं जो माइनस कर दिंदा मैनू पता लग जाना भी किन्नी टोटल लेडीज़ ने, किन्नी टोटल लेडीज़ ने, है ना। अगर मैं जेंट्स घटा दा स्ट्रैंथ चों तो मैनू पता लग जाना किन्नी लेडीज़ ने मेरिया। तो 12000, देखो दिमाग लगाओ, 12100 जो 6400 घटाओगे अगर तो कितना बचूंगा, करो कैलकुलेट जरा करो। 2100 हो गया, उरे कितना आ गया 400, आ जीरो लिखा, जीरो लिखा। 11 जो 4 के कितना रह गया, कितना रह गया 11 4 के कितना रह गया 7। अगर मेरा 7 था उरे कितना आ गया 1। 11 जो 6 के कितना रह गया 5, तो कितना आ गया 5700। आज ये भी थोड़ी लंबी होंगी क्योंकि 2-3 दिन की मैं वीडियोज़ पाई नहीं थी, इस करके मैंने कह रहा, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया 5700। तो मैंने पता लग गया मेरे को सिर्फ 5700 लेडीज़ ने टोटल। तो पहला 2400 भी तो हैगी थी, 2400 घटा दो जो, अगर 2400 घटा देते जो पता लगना कितनी लेडीज़ बधियाँ थोड़ियाँ। देखो दिमाग होया 7 तो 4 के 3, तो कितना आ गया 1, तो 1300 कुछ बधियाँ लेडीज़। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। समझ आ गया? कोई डाउट है किसी ने पूछ लिया जाए, सौखा क्वेश्चन सीगा, नॉट टफ। सो साढ़े 3 क्वेश्चन रह गए हुए आ, मैं और थोड़ी देर तक इतने रख रहा मैं। तुसीं बस तुसीं ये कर देखो, एक बार करके देख लो। देखो द रेशियो ऑफ मैन एंड वूमन इन अ फैक्ट्री इन 7:5, 7:5 कितना 720 के बराबर दिता हुआ है ना। ये रेशियो दिती है दोनों की। हाउ मैनी मोर वीमेन टू ऐड टू मेक रेशियो 1:1। देखो बोले ना 1:1 लिखा है, देखो और ना 1:1 लिखा हुआ है, तो 1:1 बन गई। ये थोड़े मैन, ये थोड़े वीमेन है। ऐड किनू किया गया, जनानियां नू, वीमेन नू ऐड किया गया। बंदे तो सेम है ना, बंदे ने तो नहीं छेड़िया, लेकिन उन्हें 7 हो ही फिरते हैं। तो मैं इनू 7 बनाने लिए क्या करूँगा, इतने 7 ना गुणा करूँगा, किनू करूँगा 7 ना गुणा करूँगा। अब बराबर हो गए, अब बराबर हो गए, 7 बराबर हो गए ना। हूँ मैनू कोई चक्कर नहीं है। तो किन्ने बधे आ, 2 बधे, 5 तो 7 हो गए, 2 बधे। देखो अदर 7 ना गुणा करते मैं अदर ही 7 ना गुणा करनी पड़ी। अगर मेरे 2 बधे है तो मैंने पूछा कि किन्ने बधे, है ना। तो पूरे 7 5 12 हो गया, 12 से 72 हो गया। अगर 1 बराबर है 60 के बराबर है, तो 60 दूना 120 है, मतलब 120 वीमेन इनक्रीज हुई है। क्लियर क्लियर। हूँ कि सर्टन स्कूल आ रेशो बाय 7:5 दिता। इफ देयर आर 24 स्टूडेंट इन द स्कूल, जिस कहने 24 स्टूडेंट स्कूल में है, तो गर्ल्स की रेशो पूछी है। कितना सौखा क्वेश्चन है। 7 5 12, 12 दूना 24, 1 बराबर है 200 आ गया। कुड़ी के नहीं है 5, 5 दूनी 10, 1000 आंसर आ गया। बस ये तो जमी ईजी क्वेश्चन सीगा ना। 30th क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड असी अगे अगली टाइप शुरू करांगे। 3 नंबर्स दिते हुए ABC इन द रेशो 12 15 15, 12 15 25। सम ऑफ दीज नंबर्स 312। रेशो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ BA एंड द डिफरेंस ऑफ CB। वेरी ईजी। सो इन्होंने पहले जोड़ो, 25 15 और 12, 25 और 15 40, 40 और 12 52, 52 के बराबर हो गया। क्लीयर हो गया। 52 अगर 312 के बराबर है, तेनों कट दो आपस के कितना आंदा। ठीक है ठीक है, ये कटदा 6 के टेबल से। 1 बराबर है 6, 1 बराबर मेरा 6 है। तो मैंने पूछा गया रेशो कड्डो, लेकिन डिफरेंस ऑफ B एंड A पहला देखो। B किन्ना 12, A किन्ना B किन्ना 15, ये डिफरेंस किन्ना 3, ये डिफरेंस 3। अगर उरे 3 तो किन्ना आ गया अंदर 18, 18 रेशो आ गई। तो डिफरेंस ऑफ CB कढ़ना है 25
और 15 अगर 10 10 ठीक है 60 ਹੁਣ ਕੱਟ ਲਓ ਆਪਸ ਕੱਟੋ ਕੋਈ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦੋ ਹੈ ਨਾ 2 9 18 2 3 6 3 3 9 3 10 30 ਤਾਂ 3 ਰੇਸ਼ੋ 10 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਵਾਓ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ